Start. Savle sir, are you able to hear me, sir? Yeah. I'm Okay, sir. able to hear you. So, sir, with your permission, sir, I'll formally start the session, sir. DGP, sir. Okay. So, a very good afternoon to all. Welcome to the live national webinar on Internship for Crime-Free and Jobs and Service-Rich Bharat, hosted by IES University, Bhopal. I, Professor Roshan Sahajpal from IES University, wish you all a very warm welcome. We are honored with the presence of our guest keynote speaker for today's webinar, Honorable Shri Maithili Sharan Gupta sir, DGP, Police Reform, MP Police Department. Also, we are grateful for the gracious presence of Engineer B.S. Yadav sir, Honorable Chancellor IES University, Dr. Sunita Singh ma'am, Pro Chancellor IES University, Shri Devan Singh sir, CEO IES University, Vice Chancellor IES University, Registrar IES University, Director HR and Admin IES University, Principal, Deans, Senior Faculty members and students of IES University. A very warm welcome to all. Before proceeding with the session, I would like to give a brief about IES University. IES is in the field of education. चैनल जो है क्राइम फ्री भारत, उनको बताइए क्राइम फ्री भारत जो हमारे जितने भी मैसेज में गया है, दे कैन जस्ट जो है ना सर्च क्राइम फ्री भारत एंड दे विल गेट इट लाइव. क्राइम फ्री भारत. Okay. IES is, yes sir. IES is in the field of education. Yes sir, he is giving instructions to his team sir for streaming. Shall I go ahead, sir? Alifa, you joined? Yes, sir. Okay. What is the issue? Sir, DGP sir is not visible on the screen. Only you and me, Registrar sir and Vijay sir is there. 4 people. So I'm not able to see him, sir. Yeah. Sorry, there was some technical issue, that's why I was out. And Yes, sir. I think we can resume our Yes, sir. session again. Yeah. Okay, sir. So a very warm welcome to all. Before proceeding with the session, I would like to give a brief introduction about IES University. IES is in the field of education for past 20 years and has been endorsed as the most promising university of Central India, providing education from nursery to doctoral level. IES University is well known for its excellence in overall development-based education of students to facilitate skill building, entrepreneurship development, and creation of leading professionals
IS University keeps on taking such initiatives for the continuous development of both students and faculties. We are thankful to Engineer B.S. Yadav sir, Honorable Chancellor IS University, and Dr. Sunita Singh ma'am, Pro-Chancellor IS University, for their generous presence in the session, who have always encouraged and motivated us with their never-ending hard work, passion, and foresighted vision for the education system. As a mirror of perfection, they have always inspired us. Now, I would request Dr. Jyotiram Savle sir, Registrar IS University, to accord the welcome address. Over to Dr. Jyotiram Savle sir. Please, sir. Professor Vijay Anand Bharti, please switch on your video. Savle sir, are you there, sir? I think we have lost connection with Savle sir. So, sir, I'll proceed with this. Okay. Savle sir, are you there? Okay. So now I would like to present a brief profile of our guest speaker of today's session, Honorable Shri Maithili Sharan Gupta sir, DJP, Police Reform MP Department. Honorable Shri Maithili Sharan Gupta sir is an experienced Director General with a demonstrated history of working in the law enforcement industry and is skilled in operations management, analytical skills, government and team building. He is a strong military and protective he is a strong military and protective services professional with an MTech focus in industrial engineering from Indian Institute of Technology, Delhi. At present, he is working on several projects which may change the capability of India. These projects are as follows: automated investigation support system with use 21 technologies to pave way for crime-free India, empowering railway passengers through integrated All India DRP help app, reporting app, supervisory app, and responder investigator app, railway stakeholder help app, railway passenger volunteer app with powerful web-based response monitoring and investigation support system. State disaster command response and monitoring system to create disaster capable and resilient India using predictive proactive warning system, mobilizing of local resources, shifting population under risk to safer location using period of infotainment and capacity building. Automated data, information and documents, requisitioning and assimilation system, making road travel safer, minimizing death in accidents to 50% through back spot identification and spot specific resolution using 3 E's: engineering, education, and enforcement. Automated investigating system for unearthing and smashing networks of drug and narcotics mafia and ensure total demolition of network along with its distribution network. Automated investigation system for unearthing networks of illicit arms mafia and ensuring total demolition of network along with distribution network. Automated investigation support system for unearthing a network of human trafficking mafia and ensuring total demolition of the network. Welcome to IS, sir. It is a pleasure and honor to have you as our guest keynote speaker for today's national webinar. Now over to Shri Maithili Sharan Gupta sir to commence his session, please. Sir. Thank you. Thank you. Thanks for such an elaborate introduction. इतने विस्तार से इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं एंड इस विशेष अभियान से जुड़ने के लिए आईएएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मिस्टर इंजीनियर बीएस यादव और रजिस्ट्रार प्रोफेसर सहजपाल और सभी फैकल्टीज, एचओडीज एंड स्टूडेंट्स का भी जो है को मैं साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम लोग अपराध मुक्त भारत की बात करेंगे, क्राइम फ्री भारत की बात करेंगे। और जब हम क्राइम फ्री भारत की बात करते हैं तो इसके साथ हम लगभग 11 अन्य भारत की बात भी करते हैं। तो क्राइम फ्री भारत, जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत, देन
हर्बल, ग्रीन, ऑर्गेनिक, न्यूट्रिशन रिच, मेडिसिन फ्री हेल्दी भारत, जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत, आत्मनिर्भर एंड समर्थ भारत, ग्राउंड वाटर रिच भारत, क्रिएटिविटी इनोवेटिव थिंक टैंक रिच भारत। तो ऐसे करीबन जो है 11 भारत जो है का एक परिकल्पना की गई है। और कैसे जो है न केवल अपराध मुक्त भारत को प्राप्त करेंगे, बल्कि उसके साथ 130 करोड़ लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और इन सभी 130 करोड़ लोगों को 3 तरीके की रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। एक रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी जो वो चालानी साक्ष्य जो है वो अपने ऐप से भेजेंगे, जो कि CCTNS के माध्यम से थानेदार के पास पहुंच के चालान में कन्वर्ट होगा। उसकी 50% मनी जो है वो उस कम्युनिटी वॉलंटियर तक पहुंचेगी, जो कि एक बड़ी राशि होगी। ऐसे ही जो उसको टास्क दिए जाएंगे या जो वो इंफॉर्मेशन देगा, उस इंफॉर्मेशन से जो अपराधों का डिटेक्शन होगा, उसके लिए प्रमोशन वाउचर की व्यवस्था की गई है। और तीसरी रेवेन्यू स्ट्रीम उसके अपने काम से जो रेवेन्यू स्ट्रीम उसको मिलेगी। ऐसी 3 रेवेन्यू स्ट्रीम की व्यवस्था जो है ना 130 करोड़ लोगों के लिए की गई है। स्टूडेंट्स के लिए भी जो है, फैकल्टी के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, जो भी इसमें पार्टनरशिप में है, उन सब में जो MIT में मॉडल है, हार्वर्ड में मॉडल है, उस मॉडल के हिसाब से रिसर्च, स्टार्टअप्स और इसका एक पूरा साइक्लिक जो है व्यवस्था की गई है, एंड टू एंड व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो नौकरी की बजाय दे विल बिकम एंटरप्रेन्योर, और वो नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे। और वो जो अभी उनको सैलरी मिलने वाली होगी उससे 10 गुना से ज्यादा जो है ना पैसा वो आसानी से कमा पाएंगे, और आगे तो उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे। और इस रेवेन्यू स्ट्रीम न केवल बच्चों के लिए होगी, बल्कि जो टीम लीड्स हैं, फैकल्टी हैं, उनको भी रेवेन्यू स्ट्रीम जाएगी, इंस्टीट्यूट को रेवेन्यू स्ट्रीम जाएगी, मेंटर को रेवेन्यू स्ट्रीम जाएगी। तो इस रेवेन्यू स्ट्रीम का जो है सभी लोगों को जो है ना इसका फायदा पहुंचेगा। और जो ये स्टार्टअप है ये एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अभी ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा खाका दिया है कि एक बहुत बड़ी पिक्चर है, जिससे कि देश के ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में देयर विल बी क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस इन इंस्टीट्यूशन। अभी हमारे एजुकेशन में एक बहुत लंबे दर्जे से जो है गिरावट देखने में आई है, जब लॉर्ड मार्कल ने जो हमारा इंडियन सिस्टम को ध्वस्त करके अंग्रेजी का सिस्टम लाए, और हम लोग जो कि विश्व में सबसे विद्वान माने जाते थे, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए लोग बाग जो है वो बगल की आसपास की कंट्रीज में कोचिंग लेते थे, तब उनको नालंदा में एडमिशन मिल पाता था। ऐसे विद्वान भारत जो है ओवरनाइट लॉर्ड मार्कल ने उन्हें अज्ञानी और जीरो इलिटरेट घोषित कर दिया। अब पुनः इस प्रतिष्ठा को दोहराना है, दोबारा जो है क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस लाना है। और हमें एक जो हमारे बच्चे हैं ये रूटन रट के घोट के और वैसे ही निकल के डिग्री पाके और फिर जॉब के लिए भटके, ऐसा नहीं होगा। वो जो है ऐसी ऐसी चीजें डिजाइन कर पाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें जो है ना सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोसेसेस डिजाइन करेंगे, जिससे कि हमारी और कार्य करने की पद्धति बदलेगी। तो ना केवल अपराध मुक्त भारत, बल्कि वो भारत को ही पूरा ट्रांसफॉर्म करने की जो है ना क्षमता रखेंगे। आगे चल के जो है, अभी यदि हम थोड़ी देर के लिए हल्का सा मैं आपका ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ ले जाता हूँ। देखिए हमारी सोसाइटी इस समय पूरे नेगेटिविटी के चक्र में फंसी हुई है। आप ये देखिए, एक गाय वाला है, वो आपको इंजेक्शन लगाता है, दूध निकालने के बाद उसमें जो है पानी से लेके यदि पानी मिलाता है, शुद्ध पानी मिलाता है तो बहुत ही धन्यवाद का पात्र है। वो उसमें और कोई जहरीली चीज ना मिलाए, यही बहुत बड़ी बात है। देन बड़ी संख्या में, यदि आपने देखा हो इस बारे में, आप जरा इंटरनेट पर सर्च करिए, जो रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं वो कह रहे हैं कि जितनी हमें
दूध की सप्लाई है, इसकी 2/3 जो ना सप्लाई या तो एडल्ट्रेटेड है या सिंथेटिकली मेड है। मतलब हमारे ही जो है मैं कि कुछ लोग जो वो कृत्रिम चीजों से, यूरिया आदि से जो है वो दूध का निर्माण कर रहे हैं, और आपको दूध के नाम पे जहर जो है ना परोसा जा रहा है। हम उस कृष्ण के पृथ्वी के, और कृष्ण के जो है कि पृथ्वी है, भारत उन्हीं का देश है, जहाँ पे कि गाय और कृष्ण और बांसुरी वो जो संबंध था, और जो उससे जो जो इंडियन गाय है, जो देसी गाय है जिसमें कि हम्प होता है, उसका जो दूध होता है वो अल्फा 2 कैटेगरी का मिल्क होता है। तो उस दूध की बजाय हम जो है एक जहर पी रहे हैं। अब आप वहां से लौट के आइए तो मुर्गियों पे आइए, तो मुर्गियों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। देन वहां तक भी ठीक है, मुझे सुनने को मिला है कि कुछ चाइना वाइना जो है ना वो नकली कृत्रिम अंडे वगैरह के भी बेच रहे हैं, ऐसा भी कुछ सुनने में आया है। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब यदि अपन आगे जाएं तो किसान बेचारे वो जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि सब मिट्टी से जो है किसानों की और लेबर की पसीने की सुगंध आना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमारी मिट्टी में केमिकल और पेस्टिसाइड की बदबू आ रही है, और उससे पानी का स्रोत भी जो है वो दूषित होता जा रहा है। और पहले ओवरग्राउंड वाटर दूषित हो रहा था, अब तो अंडरग्राउंड वाटर भी दूषित हो रहा है। अब अपन जो है ना इससे और आगे बढ़ते हैं। सब्जी वाले का देखिए, तो वो सब्जी को रंग रहा है, कहीं वैक्स लगा रहा है, फलों की भी स्थिति है, तो उसको पकाने में सिर्फ कार्बाइड्स नहीं बल्कि ढेर सारे इंजेक्शन से लेके हम जो है पूरे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये देखिए, साइंटिस्ट ने बीज जिसका काम की चीजों को पैदा करना है, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बना दिए, जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड। हमने सिर्फ अपना शुद्ध लाभ कमाने के लिए बीज का जो सबसे मुख्य गुण है कि वो पैदा करता है, अपने उसको आगे बढ़ाता है, उसके उस गुण को खत्म कर दिया है। अभी इसमें कई वर्ष लग जाएंगे कि ऐसे जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ रहा है। अब अपन जो है ना आगे चल के थोड़ा सा डॉक्टर्स पे आ जाते हैं। हमारा जो शरीर है वो एक रोबोट नहीं है, वो एक बायोटिक शरीर है, और हमारे अंदर ढेर सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी विभिन्न प्रक्रियाओं में, इंक्लूडिंग पाचन प्रक्रिया में हमारी मदद करते हैं। लेकिन हमारे विद्वान डॉक्टर प्रोटोकॉल के नाम पर आपको जो है थोड़ा सा खांसी भी आती है तो वो आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं। आप याद करिए, जब आप छोटे होंगे तब आपको जो है ना 100 mg की और उस छोटी डोज से काम चल जाता था, अब वो 750 तक पहुंच गई है। पहले 3 दिन में जो है ना एंटीबायोटिक से आपका काम चल जाता था, अब 10 दिन और 15 दिन में अपन पहुंच गए हैं। मतलब उस एंटीबायोटिक से आपकी जो इम्यूनिटी और जो आपकी फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, हमने उस आर्मी को खत्म कर दिया। तो हम लोग जो है डिफेंसलेस हो गए हैं। जो विद्वान डॉक्टर ये बात कह रहे हैं, जहां से उन्होंने सीखा है और जहां से प्रोटोकॉल लाए हैं, वहां तो इतनी आसानी से एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। तो किस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? आज ये स्थिति है कि फार्मेसी मेडिकल प्रोफेशन पे इतनी हावी है कि वो जो चाहते हैं वो लिखवा रही हैं, और इस काम के लिए जो डॉक्टर्स को इंटरनेशनल सेमिनार्स यहाँ वहाँ कितनी जगह पे ले जाया जाता है। तो एवरीबडी इज बीइंग यूज्ड। आप लोग जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, उनसे रिसर्च में जो चाहे है वो लिखा लिया जाता है। मैंने जो ये भी खाका खींचा है उससे कोई पेसिमिज्म का खाका नहीं है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि पूरी सोसाइटी जो है इस समय नेगेटिव लूप में फंस गई है। अब समय आ गया है कि हम इस नेगेटिव लूप से निकल के पॉजिटिव लूप में जाएं और एक समृद्ध भारत का निर्माण करें, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। ये बहुत आवश्यक है कि हम जो है इस नेगेटिव लूप से बाहर निकलें। जो हम धन को पाने के लिए या मटेरियलिज्म के लिए इस तरीके की घटिया चीजें कर रहे हैं, शायद हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये घटिया काम करने के लिए हमें मानव जीवन नहीं मिला है। ईश्वर ने हमें शायद किसी अन्य कार्य से भेजा है जो हम पूर्णतया भूल चुके हैं।
और जिस करेंसी को, जिस मटेरियल को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उस मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं है। आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है कि उस चीज को आप अपने साथ ले जाएं। यही कारण है कि जब आपको शमशान घाट में ले जाया जाता है तो आपके शरीर का एक धागा भी निकाल दिया जाता है। आपको सिर्फ नोशनली, अब उसको जो मृतक है उसको क्या, वो तो कोई देख नहीं रहा है, तो ये मैसेज किसके लिए है? जो उसके साथ लोग गए हैं कि देखिए आपके साथ एक धागा भी नहीं जाएगा। तो ये इतना लोभ लालच, इतनी मटेरियलिज्म आप किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आप, मैंने खाका जो है जो खींचा है, सहजपाल जी आप इस बात से कुछ सहमत है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा भी ये सोचना है सर कि आज की कमर्शियल दौर में हम लोग कहीं ना कहीं अपना मूल जो है वो भूल चुके हैं, और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ सर। सर प्लीज गो अहेड सर। तो थैंक यू सर। अब एक समय आ गया है कि हम अपनी मूल बात को पहचाने और जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में पूरे साइकिल को लेके आए। जो अभी जो है, जो स्थिति बनी हुई है कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है, सामने वाला छोटे से लाभ के लिए कुछ भी कर रहा है, वो जो है दूसरों के लिए मौत का गड्ढा खोद रहा है, ये इस बात का एहसास नहीं है उसे कि हम लोग एनर्जी लेवल पे हर चीज बहुत ही इंट्रिकेटली जुड़ी हुई है। एवरीथिंग इज एनर्जी, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे फसल हो, चाहे इंसेक्ट हो, दे आर ऑल एनर्जी एंड दे आर वेरी इंट्रिकेटली कनेक्टेड, एंड उसके अभाव में नथिंग इज पॉसिबल। तो इस खाका का जो खींचने के पीछे मकसद था वो ये था कि हम पूरी सोसाइटी एक नेगेटिव लूप में आ गई है, और इस नेगेटिव लूप में ये समझ में नहीं आता है कि कौन सही है कौन गलत है। अब ये समय आ गया है कि हम इस नेगेटिव लूप से बाहर निकलें और पॉजिटिविटी लाएं। हम अपने शिक्षण संस्थानों को पुनः से जो है ना ज्ञान का केंद्र बनाएं, उनको जो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन का केंद्र बनाएं। अब मैं थोड़ी जो है रोशनी अपराध मुक्त भारत के 5 चरणों पे डालूंगा, और फिर इसके बाद इस सेशन को जो है बच्चों को और आप लोगों को प्रश्न आप पूछेंगे और उससे जो है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अपराध मुक्त भारत के लिए अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि जी, अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्राइम जो है इट हैज बिकम द मोस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एक अपराधी एक अपराध करता है, डकैती डालता है, उसको आसानी से जो है 5 लाख 10 लाख 15 लाख का जो है मसरूका मिल जाता है, क्योंकि हर चीज इतनी महंगी हो गई है। अब जो है यदि उसका अपराध का पंजीयन नहीं हो रहा है तो आगे की प्रक्रिया का सवाल ही नहीं उठता है। आगे की प्रक्रिया भी भगवान के सहारे है। तो कुल मिला के जो एक डर होना चाहिए सिस्टम का, वो डर खत्म होता जा रहा है, और उसके कारण अपराध जो है एक बहुत ही लाभ का सौदा बनता जा रहा है। हमें इस लाभ के सौदे को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम अपराध मुक्त भारत की परिकल्पना को पूरा कर पाएंगे। और जो अपराध मुक्त भारत की परिकल्पना है, इसके बेसिकली जो देखा जाए तो सही मायने में इसके 5 चरण हैं। पहला चरण है सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम, और सर्टेनिटी ऑफ क्राइम में हम जो है उसको ऐसे 5 दरवाजे दे रहे हैं जिससे कि बिना थाने जाए उसकी FIR दर्ज हो सकती है। इसके लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन का भी जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो बनके तैयार है। इसका अभी हमने रिव्यू किया था लाइव यूट्यूब चैनल पे। यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको उसका वीडियो भी मिलेगा, जिसकी कैसे जो है वो पूरा वर्चुअल पुलिस थाना आपसे FIR के डिटेल लेगा, और फिर जो है वो उसको FIR को पे जो है आपको उसमें ना केवल जो है सेक्शंस लगाएगा, वो सेक्शन लगा के अधिनियम की धाराएं लगा के सब लगा के, और इसके बाद
फरियादी को वो मौका देगा कि वो उसमें अपने हस्ताक्षर करें, और हस्ताक्षर भी कई तरीके के हस्ताक्षर हैं। एक जो है ऐप के माध्यम से उसका फोटो लिया जाएगा, दैट विल बिकम फोटो सिग्नेचर। देन वो उसकी स्क्रीन पे सिग्नेचर करेगा, दैट विल बिकम ऑप्टिकल सिग्नेचर। देन थर्ड रहेगा आधार बेस्ड ओटीपी वेरीफाइड डिजिटल सिग्नेचर। एंड तीसरा जो रहेगा वर्चुअल आईडी के माध्यम से वर्चुअल सिग्नेचर। इस तरीके के 4 सिग्नेचर जो रहेंगे, जिनको रियल टाइम में डेट, टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प के साथ इनक्रिप्ट करके हैश वैल्यू एंड ब्लॉकचेन से लॉक करते हुए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये चीज जो है लगभग तैयार खड़ी हुई है। इसकी टेस्टिंग हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। एक इसके लिए कमेटी का हमने सुझाव दिया है कि वो कमेटी बन जाए, और जैसे ही वो कमेटी बन जाएगी तो जो है वो उसका काम रहेगा कि उसको FIR को CCTMS के प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना है, और इसके लिए सिटीजन पोर्टल के ब्रिज का यूज किया जाएगा। और सिटीजन पोर्टल के ब्रिज का यूज करते हुए FIR along with the signature of victim complainant, और वो जो है उसके पास पहुंच जाएगा CCTMS में थाना प्रभारी के डेस्कटॉप पर, और थाना प्रभारी उसके कंटेंट को पढ़ के और समझ के वो जब उस पर अपने सिग्नेचर कर देंगे, जैसा कि अभी फरियादी ने किया है, तो वो FIR बन जाएगी। हमने यहाँ पर थाना प्रभारी को वो एक डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि यदि किसी भी कारण से, वैसे तो जो है जो मजनून से अपराध बनता है ये टेक्नोलॉजी ने पहले ही वेरीफाई कर लिया, लेकिन फिर भी जो है किसी कारण से यदि थाना प्रभारी को ये लगता है कि अपराध नहीं बनता है, तो वो जो है अपने कारण लिख के और उसमें अपने सिग्नेचर कर सकता है। जैसे ही वो करेगा तो उसी कानून, ये जो FIR है ये CRPC के सेक्शन 154 के तहत लिखी जाती है। इसी 154 में एक 154 पार्ट 3 है, तो वो जो 154 पार्ट 3 जो है वो SP के ऊपर ये जिम्मेवारी डालता है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की रिपोर्ट यदि थाना प्रभारी नहीं लिखता है तो वो SP के पास जाता है, और SP की जिम्मेवारी है कि उसे वो FIR में कन्वर्ट करेगा। और SP को इतने पावर दिए गए हैं उसमें कि SP या तो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या वो किसी को भी यदि इन्वेस्टिगेशन देता है तो वो व्यक्ति, चाहे वो उसके रैंक की कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो हवलदारी क्यों ना हो, he will be enjoying the power of स्टेशन हाउस ऑफिसर। वो उस पर्टिकुलर केस के लिए थानेदार के सभी जो है ना पावर उसको मिल जाएंगे। ऐसा कानून में प्रावधान है। अब कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यदि SP को भी कुछ रिजर्वेशन है और उनको लगता है कि नहीं ये हम इसमें FIR नहीं लिखेंगे, तो वो अपने रीजन उसमें लिख सकता है, और जैसे ही वो अपने रीजन लिख के और अपने सिग्नेचर करेगा, ये पूरा मसाला जो है सिस्टम उसको पकड़ के फिर से फरियादी हो जाएगा। उससे कहेगा कि जो आपने मुझे बताया है उससे अपराध बनता है इन धाराओं का। इस बारे में थानेदार साहब ने ये बात कही है, SP साहब ने ये बात कही है। अब आप बताइए कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? यदि वो कहता है हाँ, तो सिस्टम उसको एक एफिडेविट तैयार करके वहीं दे देगा, और उसको भी डिजिटल सिग्नेचर करने का जो है ना वो रहेगा, और उसमें यदि कोई कोर्ट फीस बनती है तो वो कोर्ट फीस वहीं पे जमा हो जाएगी, और उसको लेके वो सिस्टम 156(3) जो CRPC की धारा है उसके तहत जो मजिस्ट्रेट को जुरिडिक्शन है अंडर सेक्शन 190 उसके पास लेके जाएगा, और फिर जो है ना वो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि इसमें आप संज्ञान लीजिए। और इसके आगे हाई कोर्ट का भी एक दरवाजा है। तो ये 4 दरवाजे उसको सिस्टम जो है ना प्रोवाइड करेगा। मतलब सिस्टम इतनी ज्यादा मदद करेगा फरियादी की FIR लिखाने में, जहां पर सभी को अपनी उचित बात करने का हक भी रहेगा, लेकिन अपने डिस्क्रिप्शन का गलत उपयोग जो है ना करने का उसको कोई हक नहीं रहेगा। अब जब इतनी कवायद अपन कर रहे हैं तो कोई एक सवाल हमसे लोग जनरली पूछ लेते हैं कि साहब ये तो ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल फोन और ये ऐप और ये बेचारे इसके लिए गांव वाले क्या करेंगे? तो इसमें क्या ये सब उन लोगों के लिए है जो कि टेक्नोलॉजी में सक्षम है, जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास डेस्कटॉप हैं, जो कि टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो वेब पोर्टल पे अपनी FIR लिख सकते हैं, जो मोबाइल के थ्रू जो है ना अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, ये उनके लिए है? या गांव के गवाड़ी जिसके पास ना मोबाइल फोन है ना वो समझता है,
उसकी भी कुछ मदद होगी। तो मैं आपको बता दूं, उनके लिए भी मदद की पूरी व्यवस्था उसमें है। इसमें इसके लिए विशेष तौर पे IoT डिवाइस बनाए गए हैं, और ये IoT डिवाइस वहां लगाए जाएंगे जहां पे कि रूरल क्षेत्र है, और वो बटन दबा के कम्युनिटी का व्यक्ति जाए पहुंचेगा और अपने ऐप से जो है ना उसकी FIR लिखाएगा, और ये FIR पुलिस की FIR से बेहतर FIR होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सभी अपराधों के जो है वो पूरे एट्रीब्यूट्स को FIR में इकट्ठा करेगी, और तब वो FIR बनेगी, जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया है। अभी की हम FIR देखें तो बहुत सारी जगह पे हमारी अधपकी FIR होती है, जिसमें कि अपराध के सभी एट्रीब्यूट भी ठीक ढंग से नहीं आते हैं। तो ये जो FIR होगी वो अच्छी भी होगी, और उसमें जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा विटनेस भी होगा कम्युनिटी का, जो उसमें मदद करेगा, और ये व्यक्ति जो है वो छोटी मोटी दूसरी चीजें भी करेगा, जैसे वो he will become witness to the person, जो विक्टिम है, उसकी चोटों को उसने देखा है, उसको देखा है, उसने क्राइम सीन को देखा है, तो वो he can serve as a witness to that, और उनको वो उसी ऐप के माध्यम से इकट्ठा करके and then he can send it to the system, and system in turn will send it to the CCTNS। बल्कि जो है जो चोट वगैरह है उसकी गहराई से लेके लंबाई से लेके बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी बहुत डिटेल में कैप्चर करेगी। उसके कारण जो डॉक्टर भी कई बार गड़बड़ी करते हैं या उनसे कोई त्रुटि हो जाती है, ना तो वो गड़बड़ी करने की स्थिति में रहेंगे ना त्रुटि करने की स्थिति में रहेंगे। इस तरीके का जो है खाका रहेगा, और इसमें गांव के अशिक्षित लोग भी आसानी से सहयोग कर पाएंगे। फिर इसमें एक क्वेश्चन आया कि साहब बहुत सारे रूरल एरिया में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो कहा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है ये तो हमारी अपनी प्रॉब्लम है। जो हमने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, एग्रीमेंट है, उनका काम है कि सब जगह बराबर से जो है सर्विसेज दें, और जहां पे वो सर्विसेज नहीं दे पाए हैं उसके एवज में उन्हें एक फंड जमा करना पड़ता है, वो पैसा जमा करना पड़ता है, और उस फंड का नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो इसमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, इसका यूज करके हम उनको फाइबर एंड टू एंड फाइबर कनेक्टिविटी तक पहुंचा पाएंगे। और ना केवल FIR तो बहुत छोटी बात है, हमारा एक मॉड्यूल जो है ना डेवलप हुआ है जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में ट्रायल करा पाएंगे, और इसमें वो सब चीजें भी जो है कैप्चर की जा सकेंगी जो अभी आपको मात्र कल्पना लगेगी। और ये सब कार्रवाई करने में और ऐसे सब डिवाइसेस बनाने में आप जैसे ही इंस्टीट्यूट, आप जैसे ही यूनिवर्सिटी जो है वो हिस्सा ले रही हैं। आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना 46वीं यूनिवर्सिटी थी, आज एक यूनिवर्सिटी और जुड़ी है, तो 47 यूनिवर्सिटी जो है इस अभियान से जुड़ चुकी हैं। तो ये बच्चों के द्वारा किए गए प्रयासों से एक बहुत बड़ा जो है ना ताना बाना बुना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो FIR है वो बिना थाने जाए लिखी जा सकेगी, एक ज्यादा अच्छी FIR लिखी जा सकेगी, और वो पूरी तरह से कानूनी रूप से लीगली एक्सेप्टेबल FIR होगी। सिस्टम उसको बैक ट्रैक करके ऐप पे ही जो है ना उसकी कॉपी फरियादी को अवेलेबल करा देगा। तो यदि किसी व्यक्ति ने 5 रिपोर्ट की है तो उसको 5 आइकॉन लिखे होंगे, और उसको क्लिक करेगा तो उसके केस में अभी क्या स्थिति बन रही है वो डिटेल वहां पे मिल जाएगा। उसको कोई ID नहीं देना है, उसको किसी पोर्टल पे नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, वो ऐप भी उसको सब जानकारी देगा। और वो ऐप उनको ये भी जानकारी मतलब देगा कि वो फीडबैक दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, जो है ना पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरीके का बहुत ही ज्यादा पावर जो है वो पब्लिक को दिया गया है। अब ये तो हो गया पब्लिक की बात, अब पब्लिक से अपन पुलिस पे आते हैं। तो द सेकंड पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन। तो सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम। तो वो स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी ऐप में ही इंटीग्रेटेड है। तो उसके लिए स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ऐप जो है ना पुलिस के पास रहेगा, और वो जो ऐप है वो 3 चीजों को बैकएंड पे काम करेगा। एक तो वो मौके पे उन साक्ष्यों को इकट्ठे करने में पुलिस की मदद करेगा जो पुलिस सोच भी नहीं सकती है। बस इवन वो साक्ष्यों को भी कलेक्ट
करेगा जो पुलिस अपनी नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। उसको इकट्ठा करने में, उसको पैकेज करने में, उसको कोरियर करने में, इस सब में भी ये सिस्टम उनकी मदद करेगा। देन हिस्टोरिकल डाटा से बैकएंड जो इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से कौन अपराधी संभावित है उसके फोटो पुश किए जाएंगे, और वो भी बहुत लिमिटेड संख्या में। और वो जो है ना वहां मौके के विक्टिम को, आसपास के लोगों को दिखा के आसानी से अपराधी की पहचान संभव हो सकेगी। अब अज्यूम करिए कि किसी नए अपराधी ने अपराध किया, उसका फोटो सिस्टम में नहीं है, तो उसका वही ऐप जो है ना कंप्यूटर पोर्ट्रेट करना बनाने में भी मदद कर देगा। अब इसके साथ साथ जो है कई बार ये समस्या आती है कि पुलिस जो है ना बगल में सीसीटीवी फुटेज है वो लेती नहीं है, और जो है ना उसको डाटा नहीं मिलता है। तो 91 सीआरपीसी के तहत जो उसको चीज चाहिए वो सिस्टम जो है ना आइडेंटिफाई करेगा और थाना प्रभारी से कहेगा इसमें हस्ताक्षर करो, हम तुम्हारे लिए 91 के तहत ये सब चीजें जो है ना संबंधित से लेके आते हैं। और उसमें बैक एंड पे मॉनिटरिंग है, तो वो जो है थाना प्रभारी को उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं करना, सिर्फ मुफ्त में जो है ना सब चीजें पकड़ के वहां से आ जाएंगी। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि साहब वो आपको देंगे नहीं तो आप क्या कर लेंगे। तो आई सेड कि 91 का जो आदेश का पालन ना करना अपने आप में एक कानून का उल्लंघन है और उसके लिए सजा है। तो अभी तक हम लोग थोड़ा सा एक लिहाज करते हैं कि साहब जो जिस गति से मांग रहे हैं वो भी किसी विभाग का अधिकारी है, इस लिहाज ने बहुत खामियाजा बिगाड़ा हुआ है, उससे कानून जो है ना नीचे चला गया है और लोग बाग जो है कानून से ऊपर चले गए हैं। जैसे ही हम जो हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहा है हम उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने लगेंगे फॉर वायलेशन ऑफ 91, वो सभी लोग ठीक हो जाएंगे। फिर 91 के बगल में ही दो सेक्शन और है, 93 और 94, जो कहते हैं कि 91 में यदि आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो आप अपने बजरंगबली को भेज दीजिए। मतलब पुलिस यहाँ पे बजरंगबली है और बजरंगबली को ये समझ में आता नहीं है कि संजीवनी क्या है, तो वो हिमालय को भी उखाड़ के ले आएंगे। तो आप अपने हनुमान को, हनुमान रूपी पुलिस को भेजिए और उनको जो है ना क्या साक्ष्य है वो समझ में नहीं आएंगे, तो वो जो कंप्यूटर जो भी सिस्टम है उसको हनुमान जैसा जो है उठा के लेके आएंगे और आपकी टेक्निकल टीम उससे जो भी चीज निकालना है वो निकाल लेगी। अब ये बताइए यदि आपकी टीम जो है 93 और 94 में जाके सीज और सीजर करती है, किस व्यक्ति की हिम्मत है कि आपको लीगली जो देने वाला डाटा है वो देने से मना कर दे? ऐसी किसी की हिम्मत है? क्या क्या कहना है आपका? व्हाट इज योर व्यूज अबाउट इट? मैं थोड़ा सा आपसे फीडबैक लेता हूँ। Yes, sir. Purswani sir, you'd like to contribute on this, sir? Sir, we are 100% with you. It's I think the most ambitious plan which we have ever seen. Now, sir, with your blessings and with your guidance, we would like to take it forward and see it that it is implemented. Whatever best we can do. पुरस्वानी जी, अभी हाँ जी सर, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं क्योंकि ये वीडियो जो है ना लार्जर कंजम्पशन के लिए है, आपके अलावा इसको जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं उनके कंजम्पशन के लिए है। तो इसमें मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि ये बैकएंड में इतना सपोर्ट करेगा कि हम उन सब एविडेंसेस को इकट्ठा कर पाएंगे जो पुलिस कभी सोच भी नहीं सकती है। और इसके साथ ही जो है ये तीन तरीके के, अच्छा इसमें एक चीज और भी कहना चाहते हैं कि ये सिटीजन को एक राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है। अभी क्या होता है कि जो पुलिस वाला आया है वो ये सोच के नहीं आया था कि उसे जो ना दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रिंग और इतने क्लिष्ट अपराधों को देखना पड़ेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा। उसका तो बेचारे का दिमाग घूम जाता है कि जो डंडा चलाने वाला व्यक्ति है अब उससे बेचारे से आप इतनी सारी अपेक्षाएं करें तो बहुत मुश्किल काम है। और फिर जो रॉ डाटा है वो रॉ डाटा जो है ना पुलिस के हाथ में पहुंचता है। आप लोग को प्रैक्टिकल इसका ज्ञान होगा, जिनको थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई और उससे जिनका वास्ता पड़ता है, आपको भी कभी शायद वास्ता पड़ा होगा, तो आप ये देखेंगे कि आपकी एफआईआर और आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट वो चाहे पुलिस के लोअर फंक्शनरीज के कारण हो या कोर्ट के लोअर फंक्शनरीज के कारण हो, वो
डिफेंस लॉयर के हाथ में पहुंच जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है एक प्राइवेसी टू पब्लिक भी दे रहा है। तो सिस्टम क्या जो है, रॉ डाटा वो पुलिस को नहीं देगा, ये रॉ डाटा नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम के पास रहेगा, और जो उसमें से जो एविडेंस वैल्यू है उसको 3 सर्टिफिकेट से पैक किया जाएगा और उसी समय डेट एंड टाइम एंड लोकेशन के साथ उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। तो वो जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी अंडर सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट और सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो ना केवल ढेर सारे एविडेंस होंगे बल्कि उनके साथ जो है पैकेजिंग बहुत स्मार्ट होगी और पुलिस को रॉ डाटा से दिमाग नहीं घुमाना पड़ेगा। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन लीड ऐसी भाषा में दी जाएगी जो वो समझती है, और उसके साथ एक कंप्लायंस मॉड्यूल भी साथ में जाएगा, और उस कंप्लायंस मॉड्यूल से हम पुलिस की इफिशिएंसी को भी कैप्चर। तो हम पुलिस को कॉर्डनिंग से लेके, सीजर से लेके, एविडेंस कलेक्शन से लेके हर चीज में इतनी ज्यादा मदद करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्राइम। जहां हम इतनी मदद कर रहे हैं वहां जितना भी लोड जो है, जो कि अभी पुलिस के ऊपर है, वो 90% लोड विल बी शिफ्टेड ईदर टू द टेक्नोलॉजी और टू द कम्युनिटी। तो जैसे समन्स वारंट है, वो बेचारा पुलिस वाला क्यों जाके तामील करे, उसको जारी करने में भी हमारा सिस्टम मदद करेगा कोर्ट की, और वो सीधे उठ के वहां से कम्युनिटी वॉलंटियर के पास पहुंच जाएंगे, और आज आपने कोर्ट ने जारी किया और आज ही शाम को उसकी तामीली भी हो जाएगी। तो यदि कोर्ट चाहे तो अगले दिन भी पेशी रख सकती है उसकी। इस तरीके का पावरफुल सिस्टम होगा, और जो कम्युनिटी वाला है उसको एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी, तो उसको बेचारे को भी फायदा हो जाएगा। अब हम तीसरे चरण पे आते हैं। इतने सारे एविडेंस के साथ, इतने सारे सर्टिफिकेट के साथ, कन्विक्शन विल बी ए सर्टेनिटी, क्योंकि हम सभी एविडेंस कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो हजारों की संख्या में एविडेंस होंगे। तो हम कोर्ट के पास सिर्फ उतना ही एविडेंस लेके जाएंगे जो कि उसके लिए जरूरी है। और जैसे अज्यूम करिए कि हमको लगता है कि 15 एविडेंस से हमारा काम चल रहा है और हमारे पास 1000 एविडेंस हैं, तो हम लिखेंगे 15/1000। तो हम कोर्ट में सिर्फ 15 एविडेंस को पेश कर रहे हैं, बाय इंडिकेटिंग कि यदि आपको और एविडेंस चाहिए तो आप बटन दबाइए, हम अगले सेट एविडेंस का भेज देंगे। तो अब तक आपको ये चीज काफी कुछ लगने लगी होगी कि हम अधिकांश केसेस में कोर्ट की मदद कर पाएंगे, मजिस्ट्रेट की मदद कर पाएंगे उसको केसेस के फास्ट ट्रायल में, और बिना वहां जाए वीडियो ट्रायल जो है ना संभव हो सकेगा विद ग्रेट एक्यूरेसी, विद ग्रेट डिटेल। तो हमारा केसेस का डिस्पोजल भी फास्ट होगा और कन्विक्शन भी फास्ट होगा। तो ऐसे हम सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन में पहुंचे तीसरे चरण में। फिर चौथे चरण में जो हमारा डाटा सेट है और जो हम डाटा कैप्चर कर रहे हैं, आज चूंकि जो है रेवेन्यू स्ट्रीम आम जनता तक जा रही है, तो PPP मॉडल के तहत ढेर सारे CCTV, ढेर सारे IoT डिवाइस लगेंगे, और जो चीज वो कैप्चर करेंगे उसका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कंसर्निंग या तो व्यक्ति को या उस जो यदि मान लो डिवाइस है तो डिवाइस के मालिक तक पहुंचेगा। तो लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा कि अधिक से अधिक संख्या में जो है ना ये डिवाइसेस लगा दिए जाए। PPP मॉडल के तहत ढेर सारी कंपनियां आ जाएंगी, वो कहेंगे साहब हम बताइए कहाँ लगाना है। क्यों? क्योंकि उसका तो 3 महीने या 6 महीने में जितना खर्च होगा वो रिकूप हो जाएगा। तो इतना ज्यादा फायदेमंद चीज कहाँ मिलने वाली है। तो जैसे जैसे इसका गैसेशन बढ़ेगा, हम वो एविडेंस भी पा पाएंगे जो कि अभी तक कैप्चर नहीं हो पा रहा है। और फिर चूंकि मिडिल नोट्स जो है ना मूवमेंट को कैप्चर कर रही है, तो हम ये अनुमान भी लगा सकेंगे कि अपराधी कहाँ जा रहा है और ये कहाँ अपराध करेगा, और वहां पे हम पुलिस को और कम्युनिटी वॉलंटियर्स को डायनामिकली डिप्लॉय करके वी कैन हेल्प देम टू प्रिवेंट क्राइम। तो हमारे मित्रों ने पूछा कि क्या इतनी पुलिस है, तो मैंने कहा कि आप बताइए कितनी पुलिस है। तो लोग, अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए कितनी पुलिस है आपके देश में? आपके अनुमान से कितनी पुलिस है?
Alifia, go ahead. Sir, something thousands. देखिए, देश में आपने तो खैर बहुत ही कम आकलन लगाया है, लेकिन आपका कोई भी आकलन सही नहीं होगा, क्योंकि जब मैं कहूंगा कि पूरी आबादी ही पुलिस है, तो हमारी नजर में 130 करोड़ पुलिस वाले हैं। आप लोग चूंकि कानून से नहीं जुड़े हैं, आप लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बता दूं मैं कि एक सेक्शन 39 सीआरपीसी में है, जो आम आदमी के ऊपर ढेर सारी पुलिस की जिम्मेवारियां डालता है। वो कहता है कि यदि आपको किसी अपराध की जानकारी है तो आपको बताने के लिए बाध्य हैं। यदि कोई अपराध की योजना बना रहा है और आपको मालूम है तो इसे भी बताने के लिए आप बाध्य हैं। वो आपसे कहता है कि यदि आपकी आंखों के सामने अपराध हो रहा है तो आप गिरफ्तार करने के लिए बाध्य हैं। वो आपसे कहता है कि यदि जो है, पुलिस तो छोड़िए, यदि पुलिस के साथ थोड़ा सा इको आ रहा है, थोड़ा सा माइक्रोफोन को स्विच ऑफ कर दें आप लोग। तो यदि जो है पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव भी जाता है तो भी जो है उसकी मदद करने के लिए आप बाध्य हैं। अभी भी थोड़ा सा वो आ रहा है, प्लीज स्विच ऑफ। मेरे ख्याल से अच्छा शायद आपके तरफ हो रहा है, थोड़ा सा माइक्रोफोन आप लोग ऑफ कर दीजिए क्योंकि इको आ रही है थोड़ी सी। ओके, तो कानून ये कहता है कि पुलिस तो छोड़िए, पुलिस का यदि नुमाइंदा भी जाता है किसी समन्स वारंट या और किसी प्रोसेसिंग के लिए, और वो आपसे यदि मदद की बात कहता है, तो मदद करने के लिए आप कानूनी रूप से बाध्य हैं। और सामान्य केस में यदि आप कोई जुर्म करते हैं तो ये पुलिस की जिम्मेवारी होती है कि वो अपराध को हुआ है ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो प्रूव करे। लेकिन सेक्शन 39 में उल्टा कर दिया गया है। उन्होंने कहा है बर्डन ऑफ प्रूविंग योर इनोसेंस इज ऑन द सिटीजन। तो कानून क्या कह रहा है कि भाई आप इतने सारे काम करेंगे और आप जो है ना बेगुनाह हैं, ये भी आपको ही सिद्ध करना है, पुलिस को सिद्ध नहीं करना है। तो क्या हम जनता के ऊपर जो इतनी सारी जिम्मेवारी कानून ने डाली है, हम लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर देम टू डिस्चार्ज दैट। तो पूरी जनता, पूरी आबादी, जो कि कानून के हिसाब से तो वो 130 करोड़ पूरे हैं, लेकिन हमने उनको पूरों को पूरा नहीं माना है। हमने उनको 3 भागों में बांटा है। पहला भाग हमने कहा है कम्युनिटी वॉलंटियर, दूसरा कहा है कम्युनिटी ऑब्जर्वर, और तीसरा हमने कहा है स्टेक होल्डर। मतलब पूरी आबादी को, जिसको कानून ने यूनिफॉर्मली एक माना और कहा कि साहब आप एक बताइए, ये आपकी जिम्मेवारी है, और यदि आप नहीं कर पाते, कुछ गड़बड़ी होती है, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस इज ऑन यू। ऐसी जनता को हमने थोड़ी सी राहत दी है। आई सेड कि नहीं, हम आपको 3 भागों में बांटते हैं। जो लोग फिजिकली पार्टिसिपेट करने की स्थिति में हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, हम उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर का प्रोटेक्शन देंगे, और हमने उनका नाम कम्युनिटी वॉलंटियर दिया। दूसरी कैटेगरी में हमने उन लोगों को रखा कि जो किसी भी कारण से, चूंकि वो जो भी उत्तरदायित्व उनका है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निर्वहन कर रहे हैं, उसके रहते जो है फिजिकली वो कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे लोगों को हमने ऑब्जर्वर कहा है। तो वो लोग जो है चाहे फिजिकली कंट्रीब्यूट ना करें, लेकिन वो 5 सेंसेस से जो भी चीज कैप्चर कर पाते हैं वो आप तक भेजेंगे। दे बिकम द कम्युनिटी ऑब्जर्वर। एंड तीसरे वो लोग हैं, ना वो कम्युनिटी वॉलंटियर बनना चाहते हैं, ना ऑब्जर्वर बनना चाहते हैं, तो कम से कम वो अपनी सुरक्षा के लिए स्टेक होल्डर हैं। तो उनके साथ कोई अपराध घटित हुआ, कम से कम उसकी सूचना तो वो दे दे, तो दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन देयर ओन सेफ्टी। तो ऐसे पूरी 130 करोड़ लोग जो है इससे जुड़े होंगे और उनको रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी। तो आम के आम और गुठलियों के दाम। तो अब हमारे पास पुलिस की कमी नहीं है, हमारे पास 130 करोड़ लोग हैं, और टेक्नोलॉजी पीछे से बता रही है कि अपराधी कहाँ जाके अपराध घटित कर सकता है। तो हम उसको अपराध करने के पहले जो है ना गिरफ्तार कर पाएंगे। यदि जिन में अपराध करने की तैयारी एक जुर्म है, वहां पे हम सब्सटेंटिव ऑफेंस कायम कर पाएंगे। जहां पे अटेम्प्ट एक जुर्म है, वहां पे हम सब्सटेंटिव कार्रवाई कर पाएंगे, और जहां पर ये दोनों जुर्म नहीं है वहां पे हम प्रिवेंटिव कार्रवाई कर पाएंगे। यदि अभी के लवादे से हम देखें तो हमने ये हासिल किया है
कि डूइंग क्राइम इज नॉट ए ऑप्शन टू ए क्रिमिनल। यही जो है हमने पुलिस से भी कहा है कि हम आपकी इतनी मदद करेंगे, डूइंग इंफीरियर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए ऑप्शन ओपन टू पुलिस। तो जब पुलिस अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसको इतना सपोर्ट मिलेगा तो हमें कोर्ट में कन्विक्शन भी मिलेगा, यहाँ हम प्रिवेंशन भी कर पाएंगे। जनरली जो है मैं खुद ये पूछता हूँ कि क्या ये 4 चीजें हासिल करने से हम अपने देश को अपराध मुक्त कर देंगे क्या? और मेरा खुद का आंसर है कि नहीं। उसका कारण ये है कि यदि मेरा पेट खाली है तो मैं सिर्फ इसलिए अपराध करूंगा जिससे अपराध करके मैं जेल पहुंच जाऊं और मुझे मेरे पेट भर जाए और मुझे एक छत भी मिल जाए। जब तक जो है जेल जाना एक बेहतर ऑप्शन होगा, तब तक हम सिर्फ जेल जाने के लिए क्राइम करेंगे। तो इसके लिए हमने 5वीं सर्टेनिटी लाई है, सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो चूंकि हमें डाटाबेस बता रहा है कि कौन क्रिमिनल है, हमें मालूम है कि कहाँ पे जो उनके एसोसिएट्स कौन हैं, तो हम उन्हीं कम्युनिटी वॉलंटियर्स के माध्यम से उनको पहुंचेंगे और रिहैबिलिटेट करेंगे। अभी एक और बड़ी समस्या है कि सामने वाला रिहैबिलिटेशन के लिए भी तैयार नहीं। क्योंकि हम कहा है कि क्राइम इज ए मोस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो जब तक हम उसके चारों दरवाजे बंद नहीं करेंगे तब तक जो है ना वो रिहैबिलिटेट होने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं एसपी गुना रहा हूँ, वहां पे कंजर, पारदी, सांची सभी, और उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए हमने जमीनें दी हैं, लेकिन अभी भी वो पूरे इंडिया में जाके अपराध करते हैं, पूरे इंडिया में जाके अपराध करते हैं। तो वो अपराध करने से नहीं रुकेंगे फॉर वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि अभी वो एक रात में 10-10, 15-15 लाख रुपए का जो है ना माल जो है ना उनको मिल रहा है, कई बार इससे भी ज्यादा का माल उनको मिल रहा है। आप उनको ऐसा क्या व्यवसाय देंगे जिससे कि वो उतना ही लाभ उनको मिल पाए? तो वो तभी रिहैबिलिटेट होने के लिए तैयार होंगे जबकि 4 रास्ते बंद कर देंगे। सर्टेनिटी थ्रू सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन, सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन इन कोर्ट एंड सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। देन जो है जब उनके चारों रास्ते बंद हो जाएंगे तो जेल और रिहैबिलिटेशन में प्रॉब्लम को रिहैबिलिटेशन विल बी अ बेटर ऑप्शन, देन दे विल बी रेडी टू बी रिहैबिलिटेटेड। इस प्रकार हमने आपको जो है अपराध मुक्त भारत कैसा होगा इसका एक खाका खींचा है। इसकी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। इसको चूंकि पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो हमने जो है ना सोचा कि ये ऑल इंडिया लेवल पे कैसे हो, तो इसलिए कानून का एक क्योंकि कानून का तो जो है ना कानून ही तोड़ हो सकता है, तो हमने संविधान में ही जहां पे लिस्ट 2 में एंट्री 2 कहती है कि पुलिसिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, वहीं पे लिस्ट 1 की एंट्री 65C कहती है कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अभी तक आप सहमत होंगे कि हम लोग जो है साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम की ही बात कर रहे हैं। तो फिर हमने इसके लिए एक कानूनी ढांचा बनाया और वो उसका नाम दिया नेशनल अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ये कानून लगभग बनके तैयार है, इसकी अभी प्रूफ रीडिंग हो रही है। फिर ये बैटिंग के लिए हम डिफरेंट लॉ यूनिवर्सिटी को भेजेंगे और जब वहां से उसको हम और रिफाइन कर लेंगे तब ये BPRND में जाएगा और BPRND के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। अब जो है एक चीज मानना पड़ेगी कि ये प्रजातंत्र में तो जन आंदोलन के बिना कोई काम होता नहीं है, लिहाजा आई वांट टू जो है अपील हियर कि हम आप में वो आशा बांधना चाहते हैं कि अपराध मुक्त भारत संभव है। हमने आपको अभी विजन दिया है, इसको पाने के लिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इलाबोरेट करने के लिए, बार बार इलाबोरेट करने के लिए हमने एक क्राइम फ्री भारत की एक यूट्यूब चैनल की हुई है। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि आज ही आपकी यूनिवर्सिटी के सभी बच्चे, सभी अध्यापक, सभी लोग जो है ना उसको सब्सक्राइब करें और उसका स्क्रीनशॉट लेके आपके माध्यम से मेरे पास तक पहुंचाएं। और इसके बाद जो है 5 की 5 की चेन आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये मुहिम आज ही चालू हो। यदि हम ऐसा कर पाएंगे
तो वो हमें इतने सारे लोग लाइव देख पाएंगे, लाइव समझ पाएंगे और वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो उनकी आशाएं भी बनेंगी, उनको अपने अधिकार भी मालूम पड़ेंगे। और साथ में ही हमने बहुत सारे वर्जन्स ऑलरेडी रेडी कर लिए हैं, कुछ रिफाइनमेंट आप लोगों के माध्यम से होगा जो हम आपको अभी प्रोजेक्ट और मॉड्यूल बांटेंगे। और इस प्रकार जो है हम एक सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे, जो कि न केवल अपराध मुक्त होगी बल्कि जॉब एंड सर्विसेज रिच होगा, वो जो है क्रिएटिविटी इनोवेशन रिच होगा। और जहां का लैंड से लेके इंडस्ट्री से लेके जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सब 24/7 जो है एम्प्लॉयड रहेंगे, यूज होंगे। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 10% 8% नहीं रहेगी, वो 25% और 50% होगी। दैट विल बी कॉल्ड इंडियन ग्रोथ रेट। अभी जो है ना, इंडियन ग्रोथ रेट वाज पहले कहलाता था 3 या 4%, अब इंडियन ग्रोथ रेट होगा 30% एंड 50%। माय फ्रेंड, इट्स डूएबल। सो आई अपील टू यू, प्रेस ए आइकॉन, दैट इज बेल बटन, सब्सक्राइब द चैनल क्राइम फ्री भारत, और हम इस दिव्य सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करें। हमने इसकी सब कार्रवाइयां कर ली हैं, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो आप लोगों के माध्यम से हम 1.5 महीने में पूरा करेंगे। 1.5 महीने से के अंदर हम उसका एक छोटा स्वरूप पब्लिक को दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ जो है मैं आपसे मुखातिब हूं, और मैं चाहूंगा कि अब आप इस बारे में प्रश्न पूछें। Thank you very much, sir, for an enlightening session, and it was a extremely profound session, and I hope everybody who was on the show was able to gain quite a lot from this session. So there are a couple of questions that I've collected from our students, and I would like to put to you, sir. So can I go ahead, Please. sir, with your permission, sir? Please. So the first question is, sir, this dream of crime-free Bharat, as I understand, as students understand, is a people's movement using technology. So how can engineering students with their skill set play a part in this, sir? Because both of the students are technical students or engineering students, sir. देखिए, इसमें क्राइम फ्री भारत और बाकी जितनी 11 भारत की बात कही है, उनका एक बड़ा खाका तैयार कर लिया गया है। देयर इज ए लार्जर विजन। और ये जो इंटर्नशिप का हमने मॉडल रखा है, इसमें हम एमओयूज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज से भी कर रहे हैं, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी हर तरीके के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, हम हार्डवेयर और गैजेट भी जो है ना डिजाइन कर रहे हैं, और हम प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। इसमें हम ढेर सारी रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे पेटेंट्स हमारे बच्चे प्राप्त करेंगे, और जो इसमें डिलीवरी मॉड्यूल है और मॉडल है, दैट इज स्टार्टअप मॉडल। तो आने वाला समय जो आप जो माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, वो जो उन्होंने जो 20,000 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, हम इस बात हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे उसका पूरा ठीक ढंग से दोहन कर पाएंगे, और उसका उपयोग करते हुए एक सक्षम वो जो ना उसको क्रिएट कर पाएंगे। और जो आपके बच्चे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, वो एक गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको अप्लाई करेंगे। उनको 4 का ग्रुप बनाएंगे आप, एक टीचर टीम लीड होगा, और उन जो ग्रुप होगा वो क्या किस एरिया में काम करना चाहते हैं उसके आधार पर वो ग्रुप बनेगा। और वो चार्ट मेरे पास आएगा, और बिग पिक्चर के आधार पर जहां जहां गैप्स हैं, या जहां जहां हम रिफाइनमेंट की अपेक्षा कर रहे हैं, या जहां जहां पे हम थोड़ा सा डुप्लीकेशन करना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट हम उसको अलॉट करेंगे। और वो प्रोजेक्ट जो अलॉट होगा, उसमें उसको सीरियसली कार्रवाई करना है। नंबर 1, इट इज नॉट ड्रिवन बाय ए प्लेजर डॉक्ट्राइन, इट इज ए सीरियस एक्टिविटी एंड इट इज ए करिकुलर एक्टिविटी। तो चाहे वो इंटर्नशिप होगी, चाहे वो माइनर प्रोजेक्ट हो या मेजर प्रोजेक्ट हो, या आगे चल के हैकाथॉन हो या स्टार्टअप में कन्वर्ट हो, एवरीथिंग विल बी ए सीरियस एक्टिविटी। और इट इज नॉट ए गवर्न बाय द whims and fancy of student, they have to put right kind of the energy in that, क्योंकि उसका जो evaluation है वो उनकी मार्कशीट में जाएगा। It is not their extra curricular activity, and as a matter of MOU में जो है उसको I am also one of the evaluator. I am enjoying the status of external evaluator. तो
क्योंकि अब आप जो है 46 यूनिवर्सिटी के बतौर हमसे साइन कर ही रहे हैं, तो that those clauses of those MOU has to be very strictly followed. इसमें जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं वो ओपन चैनल से कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट नोट के ऊपर जब हम ब्रीफिंग करेंगे आपको मॉड्यूल बांटने के बाद, तो वो भी लाइव होगी। देन आपको इसमें रिसर्च करना होगी, जैसा हमने कहा है। और हमने आपसे ये भी बात कही थी कि कुछ इंस्टीट्यूशनल इनेबलिंग की बात हमने कही थी, वो इंस्टीट्यूशनल इनेबलिंग आप बच्चों की करेंगे, जिससे बच्चे जो है ना क्वालिटी जो है लिटरेचर सर्वे कर पाएंगे। और इसके बाद वो इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कॉन्सेप्ट नोट बनाएंगे और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर से प्रेजेंटेशन होगा। वंस जो है ना कॉन्सेप्ट नोट इज फाइनलाइज, देन दे विल बी, यदि सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है तो उसमें वो प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाएंगे, या यदि वो हार्डवेयर का प्रोजेक्ट है तो प्रोटोटाइप बनाएंगे, और यदि वो प्रोसेसिंग वाला है तो उसमें प्रोसेसेस की डिजाइन करेंगे। और सॉफ्टवेयर के केस में डीबगिंग होगी, हार्डवेयर के केस में टेस्टिंग होगी, और प्रोसेस के केस में जो है ना इवेल्युएशन होगा, उसकी ऑडिटिंग होगी, उसका सर्टिफिकेशन होगा। और इसके साथ ही जो है वर्जन 1 लॉक हो जाएगा, और जैसे ही वर्जन 1 रेडी होगा वो यूज के लिए इंटीग्रेट हो जाएगा और उसके रिफाइनमेंट का काम जारी रहेगा। इसके लिए 11 पोर्टल बना लिए गए हैं, जिससे जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सब लोगों को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। इंडस्ट्रीज को इंटीग्रेट किया जा रहा है, सब लोग को इंटीग्रेट किया जा रहा है। वो 11 पोर्टल हमने पहले अलग अलग बनाए थे, अब उनको एक साथ इंटीग्रेट करके एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि 15 दिन में वो सब चीज कार्रवाई हो जाएगी और हम उसे बहुत जल्दी जो है ना लॉन्च करेंगे। ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए हमने मैनेजमेंट जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और वो बहुत ही डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे कि आप उसमें कोड वगैरह की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। सब कुछ उसके अंदर संभव है। तो क्योंकि मेरे लिए अदरवाइज इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे बच्चों की मॉनिटरिंग संभव नहीं है, लिहाजा जो है दैट यू विल आल्सो बी गिवन दैट आईडी पासवर्ड ऑफ दैट। तो आप अपनी टीम्स के भी जो है उसमें वो निकालेंगे, एंड फ्यूचर का जो फॉलोअप होगा वो उसी सॉफ्टवेयर के तहत होगा। मैं आपके प्रश्न का कुछ जवाब दे पाया हूँ क्या? बिल्कुल सर, 100% सेटिस्फैक्टरी आपने जवाब दिया सर। Now I would like to invite Kishore Purswani sir, if he has a question. Sir, you can put your question, sir. Kishore Purswani sir. Sir, at the outset, sir, before the formal thanks, sir, I am on my personal behalf and behalf of university, I would like to thank you for an excellent insight into the crime-free Bharat. Sir, I have already subscribed, as I have shared with you, and I would like my friends and colleagues also to subscribe to it. अब सर एक क्वेश्चन जो आता है कि इसको एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंप्यूटर लिटरेसी लेवल, इवन एट द पुलिस लेवल, ग्राउंड लेवल हमको बहुत बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए क्या प्लान्स होंगे सर? नहीं, हमें किसी का ज्ञान नहीं बढ़ाना है, हमें उसको उसकी भाषा में पैकेज कर देना है। तो जितनी भी प्रोसेसेस हैं दे विल बी ऑटोमेटेड थ्रू द ऐप। वो ऐप अपना यूज कैसे करना है वो खुद ही ट्रेनिंग दे देगा। उसमें जो है ना हेल्प और वो सब चीजें उसमें रहेंगी। इट विल बी हेल्पिंग एंड इट विल बी कैप्चरिंग देयर परफॉर्मेंस आल्सो। और यदि उसका परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा तो जैसे आप गेम खेलते तो कहते हे यू हैव डन गुड जॉब, यू आर अप बाय 2.2, तो ऐसा वो मैसेज भी देगा। और यदि आप नीचे जाएंगे तो कहेंगे हे यू आर डाउन बाय 2 पॉइंट, व्हेनेवर यू गेट टाइम प्लीज प्रेस स्टार, आई विल टेल यू हाउ टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। लेकिन सर इसमें एक छोटा सा डाउट रह जाता है। हमें देखिए, हमें पुलिस का तकनीकी ज्ञान नहीं बढ़ाना है, हमें उसकी प्राइवेसी जो है जनता की देना है। तो हम जो है पुलिस को लेमन भाषा में क्या करना है जो एक आम आदमी समझ सकता है, इवन हमारा कम्युनिटी वॉलंटियर समझ सकता है, उस भाषा में उसको इन्वेस्टिगेशन लीड दी जाएगी। उसको कोई कंप्यूटर लिटरेसी की जरूरत नहीं है। उसके हाथ में जो ऐप दिया गया है वो एक जादू की जो है ना एक मैजिक बॉक्स होगा, और वो जो है अपने आप को मॉडिफाई करेगा। तो जो सिलेक्शन का बॉर्डरेशन है वो भी हम बैकएंड इंटेलिजेंस से खींच लेंगे। मतलब आपने सेक्शन का जिस अपराध का किया
तो वो ऐप अपने आप को खुद जो है ना उस अपराध की विवेचना के लिए अपने आप को रीसेप कर लेगा। उसके लिए आपको यहाँ टैब दबाना वहां टैब दबाने की जरूरत नहीं होगी। द मोमेंट यू हैव फिक्स्ड के साथ इस अपराध की आप विवेचना कर रहे हैं, वो घूमेगा और इट विल ट्रांसफॉर्म टू हेल्प यू इन दैट। जब आप जो है ना मर्डर का केस की विवेचना करेंगे तो वही ऐप जो है ना अपने आप को फिर से सेक करके रिफाइन होके एक दूसरे ऐप की तरह जो है ना काम करेगा, जिसमें वो सिर्फ मर्डर की बात करेगा। तो आपको ना ये बटन दबाना ना वो बटन दबाना है, कुछ नहीं करना है, और वो आपको इंफीरियर काम करने नहीं देगा। आगे चल के इसमें स्टार्टअप से जो है के माध्यम से वी विल बी प्रोवाइडिंग द सर्विसेज लाइक ड्रोन बेस्ड सपोर्ट, रोबोटिक बेस्ड सपोर्ट, और वो पुलिस को नहीं देंगे, क्योंकि हमें पुलिस को देने से, मैं डीजी हूं, मैं समझता हूं अपनी पुलिस को, यदि हम पुलिस को दे देंगे तो वो स्टोर रूम की शोभा बढ़ा देगा। तो हमें स्टोर रूम की शोभा नहीं बढ़ाना है। सिस्टम से जैसे ही अपराध होगा, वो सर्विस प्रोवाइडर को जो है ना, जो स्टार्टअप से उनको खबर पहुंच जाएगी कि सारे अपराध हुआ है, जो वो सेवाएं देंगे वो जो है ना सीधे जो ना वहां से निकल के क्लाउड एनवायरनमेंट में चली जाएंगी, क्लाउड स्पेस में चली जाएंगी। दैट क्लाउड स्पेस विल बी ओन्ड बाय नेशनल अथॉरिटी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस, और वो उससे एविडेंस को खोज के उसको पैक करेगा कोर्ट के लिए, और इन्वेस्टिगेशन लीड बना के पुलिस को देगा, और साथ में एक कंप्लायंस मॉड्यूल भी देगा। तो हम अपने पुलिस जो कि ऑलरेडी बहुत व्यथित हैं, हम उनको एक तो डीबर्डन करना चाहते हैं, हम उनको डिस्ट्रेस करना चाहते हैं, उसको रिलैक्स करना चाहते हैं, उसको टेक्नोलॉजी के बोझ से जो है ना उसको जड़बोनी करना चाहते हैं। वो जो है ना इतनी हाई टेक्नोलॉजी करने होता तो वो मास्टर बनता, वो जो है ना इंजीनियर बनता। वो पुलिस वाला इसलिए बना था क्योंकि उसे ये सब नहीं करना था। अब हम उसको जो है ना बैकडोर से ये सब करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वी विल मेक हिज लाइफ इजियर, he will having the more time to enjoy with his family, he will be totally relaxed, and at he will be in position to detect all offenses, he will be in position to get conviction in all cases. So, and when he will be moving in front of you, in respect you will rise and salute him. आपकी आने वाली पुलिस ये होगी, हम उसे बिल्कुल भी तकनीकी ज्ञान और कंप्यूटर लिटरेसी इस सब से जितना दूर ले जा सकेंगे उतना दूर कर देंगे। और आप वैसे भी देख रहे हैं कि आप आजकल, पहले जो है ना आप डॉस में जो है ना पहले एक कार्ड कट होता था, कार्ड डालते थे, फिर बाद में डॉस कमांड आए। अब जो है ना बहुत सारी चीजें कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड योर कमांड, हे डायल मिस्टर किशोर, तो 2 मिनट में जो है ना वो किशोर को डायल कर देगा। डायल मिस्टर सहजपाल, तो सहजपाल को डायल कर देगा। नाउ यू डू नॉट नीड एनीथिंग टू नो, वो आपसे आपकी भाषा को समझता है। तो इवन now the Siri and other Google Assistant, they understand your language, your tone, your way of speaking. Now we have moved to that level of specialization. तो हम अपने पुलिस वाले को ये फालतू की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल बर्डन नहीं करेंगे। At the backend engineer will be full of technology, and it will be integrating gadgets, it will be integrating the technology, but उसके सामने जो होगा वो ह्यूमन फेस होगा। 130 करोड़ कम्युनिटी वॉलंटियर्स होंगे, और हमारी डिपेंडेंसी मौके पे जो हवलदार राम सिंह है उसके ऊपर नहीं रहेगी। हवलदार राम सिंह के मदद के लिए पूरा सिस्टम खड़ा होगा, और जहां जरूरत होगी डिसीजन मेकिंग के लिए, सिस्टम जो है ना यही ऐप रियल टाइम बेसिस पे चीजों को जो है ना एक्सपर्ट के पास ले जाएगा, और फिर एक्सपर्ट को भी अपना काम बहुत प्रिसीजन के साथ करने में मदद करेगा। और मालूम पड़ा कि उसने 10-5 मिनट में अपना काम किया, और वही उसका आउटपुट जो है ना आल्सो इज अवेलेबल टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो हम जो है जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कुछ लोग जो है ना ये भ्रम पैदा करते हैं कि टेक्नोलॉजी आदमी को रिप्लेस कर रही है। यहाँ टेक्नोलॉजी आदमी को रिप्लेस नहीं कर रही है। टेक्नोलॉजी और आदमी और कम्युनिटी वॉलंटियर, they will work in absolute harmony, and they will be doing a marvelous job of making our country crime free. मैं चाहता हूं एज ए लेमैन आप मुझे चैलेंज करिए इस बात को। थैंक यू वेरी मच सर फॉर अ डीप इनसाइट। आपने मतलब जितना है ना आपके दिमाग में जो भी जिज्ञासाएं आ रही हैं, यू जस्ट ग्रिल मी। नहीं, आपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर बताया, दैट इज रियली पावरफुल। लेकिन सर एक और इससे छोटा सा क्वेश्चन उभरता है कि जैसे एक कॉमन सिटीजन के लिए मोबाइल यूज करेगा या डेस्कटॉप यूज करेगा कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए, तो एक कुछ कॉमन मतलब किस लेवल का उसको स्मार्टफोन चाहिए होगा
ताकि वो इसमें एज ए कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर पार्टिसिपेट कर सके। उसको जो सबसे मिनिमम लेवल का स्मार्टफोन है वही पर्याप्त रहेगा, उसकी मेमोरी को बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा, उसकी अधिकांश चीजें बैकएंड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करेंगी। तो वो लाइट मॉडल का सिर्फ स्मार्टफोन होना चाहिए, एंड्रॉइड फोन, और उसका जो ऐप होगा वो बहुत ही थिन ऐप होगा। वो जो है अभी आजकल देख रहे थे भारी भारी ऐप जो लगे रहते हैं, वो भारी नहीं होगा, बिल्कुल थिन होगा, क्योंकि उसकी जितनी भी जो कंप्यूटिंग पावर है वो क्लाउड स्पेस की कंप्यूटिंग पावर यूज होगी, वो आपके जो है मोबाइल फोन की कंप्यूटिंग पावर को यूज नहीं करेगा। तो आपका यदि बेयर मिनिमम वाला स्मार्टफोन है वो भी उतना ही स्मार्टली काम करेगा। Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Roshan, you can go ahead. Sir, as you have told in your discussion that we'll be the 47th university that 46th. 47th is the prestigious university. Okay, sir. You are so, 46. sir, what kind of 46, sir, right? So, what kind of, sir, support in terms of guidance is available for our students for completing their I will be available. Nothing will happen without my approval. So they have to do and they have to come back. And now I am not approving on paper. I will be approving on YouTube channel only. तो पब्लिक भी देखेगी कि आप क्या कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, और उसमें आप कैसे रिफाइनमेंट ला रहे हैं। यदि आप इसी चैनल पे देखेंगे तो ढेर सारे आपको जो ना बच्चों के रिव्यू मिल जाएंगे। अभी चूंकि हमारी टीम अभी हम मजबूत कर रहे हैं, अभी ढेर सारे वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए हैं। आने वाले समय में तो वीडियो इस चैनल पे संभाले नहीं सब लोग। Sir, Professor Vijay Anand Bharti, if you'd like to ask any questions, sir, please go ahead. Yes, sir. सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बच्चे को आप कैसे इंटर्नशिप देंगे सर? बच्चे अगर कुछ आपके साथ जुड़ना चाहें तो बच्चे की क्या होगा? पूरी कवायद यही है कि आपको ग्रुप बनाना है, मैं उनको सब्जेक्ट दूंगा उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनको जो है ना कॉन्सेप्ट पे ब्रीफिंग दूंगा, फिर देन वो लिटरेचर एंड रिव्यू सर्वे करेंगे, उसके बाद वो जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो फाइनल कॉन्सेप्ट नोट बनेगा उस पर वो प्रेजेंटेशन देंगे। और इसमें कोई आमने सामने कुछ नहीं होना है। आई विल नॉट इवन विजिट योर अकेडमी। सब चीज जो है ना साइबर स्पेस से होगी। तो जो अभी कोरोना क्राइसिस है, दैट इज द मोस्ट आइडियल पीरियड टू कीप आवर स्टूडेंट एंगेज्ड। तो इसमें जो है देन इसके बाद जैसे हमने आपको समझाया है कि वो प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाएंगे, फिर वो कोड लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हमने तीनों तरह की चीजें ली थी उसमें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसेस। तो जो जिस तरीके का आपका प्रोजेक्ट होगा उस तरीके की उसमें कार्रवाई होगी, और फाइनली उसमें मेरे अप्रूवल के बाद लॉकिंग इन होगा। देन इट विल बी कॉल्ड वर्जन 1। जहां वर्जन 1 ऑलरेडी है वहां पे वर्जन 1 आपको रेडीमेड मिलेगा, वर्जन 2 पे कार्रवाई चलेगी। I hope I made myself clear. Yes, sir. Yes, Mr. Bharti. Yes, sir. Definitely. Whether I could explain it to your satisfaction or you feel ki there's a need of further elaboration. No, sir. It's good. Thank you, sir. Sir, my next question to you is: since we'll be using so many apps and we'll be using so much of technology, how do we ensure that there is no hacking into the system by criminals or outsiders? बेसिकली हमारे 2 प्रोजेक्ट जो है वो साइबर इन्वेस्टिगेशन और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर थे। हमारे बच्चों ने इतने कमाल के सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं कि ये हैकिंग विल नॉट बी ए ऑप्शन, क्योंकि वो रियल टाइम बेसिस पे सब जो है ना वो क्रिएट करेंगे। और जब हमारी थोड़ी सी और चलने लगेगी, जो चलेगी आगे चल के, तो हम उस समय जो है ना वी विल रिवाइज द प्रोटोकॉल्स ऑफ हैंडशेकिंग। यदि आप मुझसे हाथ मिलाना चाहते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी और वो सब जो है ना हमारे डाटाबेस में पहले देना पड़ेगी, अदरवाइज यू गो नॉट बॉदर्ड। तो अभी मेन प्रॉब्लम क्या है कि पर्दे के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति एनोनिमिटी एंजॉय कर रहा है। तो किसी बच्चे ने कहा कि साहब वो इथिकल हैकर के रूप में आपसे जुड़ना चाहते हैं। मैंने कहा आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी इथिकल और अनइथिकल हैकर। यदि किसी ने हमारे सिस्टम में घुसने की भी कोशिश की तो जो हमने कानून बनाया है उसमें इस बात की व्यवस्था की है कि ये संज्ञेय अपराध होगा और उसमें मिनिमम पनिशमेंट 7 साल का है। और मुझे मालूम है कि टेक्नोक्रेट बहुत डरपोक आदमी होता है, वो 7 साल जेल में नहीं रह पाएगा। तो जो है इथिकल और अनइथिकल हैकर सब किनारे लग जाएंगे। एंड बैकएंड टेक्नोलॉजी वो ऑलरेडी ये सब चीजें कैप्चर कर रही है। तो हम ससेप्टिबल आदमी को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमें तो जैसे ही उसने एक बियॉन्ड एक पॉइंट गया, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया और हमने उसको धपक लिया, ऐसा सिस्टम होगा। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी हम रेडी हैं, साइबर इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी हम रेडी हैं,
और हम इतना खंगाल लेंगे कि अभी जैसा नहीं होगा कि जो है ना लोग वहाँ झारखंड में बैठ के आपसे ओटीपी क्राइम कर रहे हैं। अभी तो मेरे पास रिपोर्ट आई, मैंने कुछ टीम बनाई हुई है, तो वो उसको थ्रेटन कर रहे हैं कि तुम डाटा कैसे नहीं बताएगा। मतलब चोरी और सीना चोरी, अपराधी फोन देके उसको गाली दे रहा है, उसने मुझे रिपोर्ट दिया, देन आई सेंट इट टू द आईजी। आई सेड कि अब वो मेरे सुपरविजन में उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हालांकि एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म मेरा कोई सीधा दायित्व तो नहीं बनता है, बट मैंने कहा कि चूंकि मैं इस चीज को ज्यादा समझता हूं तो मैं उसको जो है ना फिर मॉनिटर कर रहा हूं। लेकिन आने वाले समय में ये सब संभव नहीं होगा। देखिए, जो भी ये क्राइम कर रहा है वो उसे बड़ी मेहनत करना पड़ती है, और जैसे जैसे आप लोगों ने अवेयरनेस या भय बढ़ाया है तो जो एक इंडस्ट्री भी पैदा हो गई है। जो ये विद्वान लोग जो है, ये जो आपके एंटीवायरस वगैरह बेच रहे हैं, ये सब जो है ना धंधा इन्हीं के द्वारा क्रिएट किया हुआ है। तो ये जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, जैसे कि हम लोग इतने विचित्र दिमाग के लोग हैं कि जैसे हमने बीज का मुख्य गुण को काट के उसको जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड कर दिया है, ऐसे ही जो सो कॉल्ड विद्वान टेक्नोलॉजिस्ट वो खुद वायरस बनाते हैं और उसके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेचते हैं। ये धंधे आगे चल के नहीं चलने वाले हैं। ना वायरस बनाने का धंधा चलेगा, ना वायरस का जो है ना एंटीवायरस बेचने का धंधा चलेगा। ये दोनों धंधे बंद होंगे आगे चल के, मैं आपको ये एडवांस में बता रहा हूँ। सहजपाल जी, मैं आपकी बात का जवाब दे पाया या मैंने पुलिस में डाल दिया उसको? नहीं सर, आपने बहुत ही ज्यादा डीपली इस चीज को एड्रेस किया है और स्क्वायरली किया है सर, फॉर विच आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, एंड आई होप द सेम गोज फॉर आवर ऑडियंस ऑल्सो। माय सर लास्ट क्वेश्चन टू यू इज सर कि आपने सर जो आपका इतना लंबा चौड़ा पूरा आपका एक्सपीरियंस है, इसमें मैं देख रहा हूँ सर कि आपने ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का यूज एकदम सही ढंग से किया है। तो क्या आप सर एक दो एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी यूज करके हमने क्राइम को या करप्शन को कम किया हो? देखिए, जब मैं डीजी रेलवे था तो ये बेसिकली जितनी भी ये खुरापात है इसकी जड़ जो है ना, जब मैं डीजी रेलवे था तभी बनी है, ठीक है ना। और हमने ये महसूस किया कि बेचारा जो फरियादी है वो तो अपनी रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है ट्रेन में, तो हमने उसके लिए जीआरपी हेल्प ऐप बनाया। फिर हमने देखा कि भाई अब हमने फरियादी की तो मदद कर दी है, अपने पुलिस वाले की तो हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमने 4 ऐप और बनाए। फिर हमने जो उसकी एनालिसिस जो है दैट इज फॉर सपोर्टिंग अवर पुलिस ऑफिसर, वो जो है ना बने पड़े हुए हैं। कुछ हमारे ही साथी दुष्ट लोगों ने जो है ना हमारा सॉफ्टवेयर को डिलीट करा दिया और हम उसको किसी प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर नहीं डालना चाहते हैं। तो आई एम स्ट्रगलिंग कि उसको जिस दिन वो होगा उसके 15 दिन में हमारे 4 सॉफ्टवेयर उस पर चले जाएंगे। हम फिर उनको 1-2 महीने टेस्ट करेंगे एंड देन दिस विल गो टू द नेशनल प्लेटफॉर्म। रेलवे जो है दैट विल बिकम इतना जो है ना जटिल अपराध रेलवे का होता है। आई प्रॉमिस वी विल बी इन पोजीशन टू डिटेक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफेंसेस इन द रेलवे डोमेन। एक तो ये है, और इस काम को हमने मैनुअली करके, आपको ताज्जुब होगा कि हमने एक गैंग से 120 ऑफेंसेस जो है ना आइडेंटिफाई किए, और वो अपराधियों को खुद याद नहीं था, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ता था कि आप इस ट्रेन में जा रहे थे और ये अपराध किया आपने, एंड देन दे विल टेल कि हाँ ठीक है साहब, इसमें ऐसा किया था, इसमें ऐसा किया था। और एक केस तो था, यदि आपने सुना होगा कि एक रति त्रिपाठी, हैव यू हर्ड द केस ऑफ रति त्रिपाठी? रति त्रिपाठी एक लड़की थी जो कि ट्रेवल कर रही थी इससे दिल्ली से, वो उज्जैन जा रही थी, और उसने अपना पर्स जो है अपने गले में बहुत ढंग से जो है ना लपेटा हुआ था। रात में बदमाश जो है ना उसके पर्स को खींचते हैं, तो चूंकि पर्स पूरा उसने गले में लटकाया हुआ था, तो वो पर्स के साथ वो भी धम से नीचे गिर गई। और उसने जो है अपराधियों को, थोड़ा जाबाज लड़की थी, उसने अपराधियों को बाल से पकड़ा, और उसको बाल से पकड़ा हुआ है और अपराधी आगे आगे जा रहा है और वो बाल पकड़े हुए हैं। और चूंकि अपराधी ज्यादा ताकतवर है तो वो बालों की कार जो है ना वो लड़की भी जो है ना गेट तक पहुंच जाती है, और गेट पे जो है वो अपराधी उसको धक्का देता है और वो लड़की जो है ना गिर जाती है। वो हमारे कारण ही जो है ना वो लड़की की जान बची। वो 40-45 दिन जो है ना शी वाज इन कोमा, शी वाज फाइनली रिकवर्ड। हमने जो है हमारी जो है टीम अंडर वन एसपी camped for investigation for almost 40 days or so, और हमने जो है ना उस गैंग को पकड़ लिया। वो ललितपुर की गैंग थी, उसमें कुछ रेलवे के भी रिटायर्ड लोग थे, और वो बड़े स्मार्ट थे, वो सब अपने फोन ऑन ऑफ कर देते थे। तो हमने एक ब्लैकआउट विंडो का फंडा निकाला और उस गैंग से 42 ऑफेंसेस डिटेक्ट किए, 42 ऑफेंसेस।
हमारे पुलिस ने, लेकिन ये सब काम हमने उस समय मैनुअली किया क्योंकि हमारे पास डाटा एनालिटिक्स और उसकी पावर नहीं थी। अब तो मैं अपने आप को सर्वशक्तिशाली महसूस करता हूँ। तो अब ना हमारे पास सब ताकत है और सबको मैं खुद लीड कर रहा हूँ। तो बच्चे सिर्फ कोड लिख रहे हैं, कोड के पीछे की आत्मा तो मेरी है। बिल्कुल। आप और कुछ कहानियां सुनाए? कहानियां तो ढेर सारी हैं। जब मैं काश्मीर में था, जब मैं काश्मीर में था, so I was IG ऑपरेशंस कश्मीर। तो मैंने कहा ये सब धंधा यार तो चलेगा नहीं। So we then invented स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी। वो हार्डवेयर रिलेटेड थी। हमने अपनी वेपन सिस्टम के लिए एक्सेसरीज डिजाइन की। हमने जो है डिजिटल प्रिसीजन से अपने वेपन्स को फायर किया। एक ऑपरेशन हम अर्थ में कर रहे थे, मैंने जो है ना बहुत ही कठिन निर्णय लिया था। कुछ ऐसे वेपन्स को हमने यूज करने का निर्णय लिया था, AGL एंड CGRL। दे आर द लॉन्ग रेंज फायरिंग वेपन्स जिनकी मारक क्षमता बहुत किलोमीटर्स में जाती है, और हमने उसको शॉर्ट रेंज में यूज करने का निर्णय लिया था। एंड उसमें काफी अपोजिशन था। आई हैड गिवन वर्चुअली रिटन ऑर्डर कि हम इसको ऐसे यूज करेंगे। मेरी उपस्थिति में उसने 30 राउंड जो है AGL का फायर किया और सब ऑफ एयर चले गए। वो तो हमारी किस्मत थी कि वहां पब्लिक नहीं थी, नहीं तो मालूम नहीं क्या होता। फिर मैंने उस सिपाही को वहां से हटाया, मैं खुद AGL के पीछे बैठ के मैंने जो है ना उसको साइटिंग किया, और जब बटन दबाए तो तीसों उस विंडो से अंदर गए एंड वी कुड एलिमिनेट द टेररिस्ट, राइट। जब मैंने ये सोचा कि साला जब IG को ही ये सब काम करना है तो फिर मुझे कुछ करना चाहिए। Then we invented the technology for that also. Then हमारी जो है वो रिस्क जो है ना हमने लगभग मिनिमाइज करके 0 कर दी, और हमारा आउटपुट लगभग 100% बढ़ गया। आपको सरप्राइज होगा कि हमने 130 मिलिटेंट्स हार्डकोर, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे, उनको जो है विद ऑलमोस्ट 0 कोलेटरल डैमेज जो है से वो किया। 12 ऑपरेशन में तो मैं सीधे जो है ना मैंने खुद लीड किए हैं, और एक ऑपरेशन में तो मैं बच गया। अदरवाइज माय ऑफिसर व्हाइल ब्रीफिंग मी ही टुक वेरी क्लोज टू द इन फायरिंग रेंज ऑफ मिलिटेंट। उससे गलती हो गई, क्योंकि कभी भी कोई अपने कमांडर को ब्रीफिंग में मिलिटेंट की फायरिंग रेंज में नहीं ले जाता है। उसको ध्यान नहीं रहा। आई वाज इन द फायरिंग रेंज, और मेरी पीठ जो है ना वो टेररिस्ट की तरफ थी, और मेरा PSO मेरे सामने था। तो उसने वेपन साइड कर लिया, and he just pushed, he could not say anything, he said sir and he pushed me, I fell down, I burst of fire जो ना मेरे ऊपर से निकल गया। तो हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी डिजाइन नहीं की, बल्कि उसने हमारी बड़ी मदद भी की, और मेरे ख्याल से उसी के कारण हमें सिंगल पीस में वहां से वापस भी आ गए। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आई एम स्टिल इन सिंगल पीस। ऊपर वाले की दुआ है सर। So, sir, now with your permission, sir, I would like to move to the next round, which is the vote of thanks, if you permit, sir. Sure. So, our most valued invited guest keynote speaker, DGP Shri Maithili Sharan Gupta, sir, Honorable Chancellor, sir, Pro-Chancellor, Madam, CEO, sir, Director HR, sir. It's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. It was an engrossing and a fruitful session full of learnings about internship on crime-free jobs and service-rich Bharat, and I'm sure that our student participants have gained a lot from today's session. On behalf of IES University, I would like to express our deep gratitude to our guest keynote speaker, DGP Shri Maithili Sharan Gupta, sir, for enlightening our participants with his profound experience and immense knowledge on the subject. My sincere thanks to IES management team, who through their relentless efforts have made such sessions possible. Last but not the least, thanks to all participants, that is the students, who attend this session on this stream. So be tuned with IES University, be preventive and be safe. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Thank you.